آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وقف ایکٹ ترمیمات کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اعلان کیے گئے بتی گل احتجاج کو کامیاب کرنے سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین نے کی اپیل۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والے مس ورلڈ 2025 مقابلوں کے انتظامات کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لیا جائزہ۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ 30 اپریل کو دوپہر 2 بجے دن وزیر اعلیٰ تلنگانہ SSC کے نتائج جاری کریں گے۔ ہائیڈرا کی جانب سے شہر کے اندرونی علاقوں میں بھی کارروائیوں کا آغاز، مہدی پٹنم روڈ پر فٹ پاتھ پر قبضوں کو کیا گیا برخاست۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کی بڑی کارروائی، 1,40,00,000 روپے مالیتی اشیاء کی گئی ضبط۔ ناظرین، ریویوز کی دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مس ورلڈ 2025 کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا ہے۔ کمانڈ کنٹرول روم میں ہوئے اس اجلاس میں ریاستی وزیر جے کرشنا راؤ، وزیر اعلیٰ کے مشیر بی نریندر ریڈی، سینئر عہدیدار بشمول پولیس عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ مس ورلڈ مقابلے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے تفصیلات حاصل کی اور موثر انتظامات کے سلسلے میں ہدایت دی۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ اگر KCR کے مکان کی اب تلاشی لی گئی تو ہزاروں کروڑ روپے کے اثاثے برآمد ہو سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے کرشنا راؤ نے کہا کہ KCR کے دور اقتدار میں کام کرنے والے آبپاشی عہدیدار کے 100 کروڑ روپے کے اثاثے پائے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ KCR کی بھی گھر کی تلاشی لی جائے تو کروڑوں روپیوں کے اثاثے برآمد ہو سکتے ہیں۔ తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర 65 సంవత్సరాలు. మొన్న జరిగిన ఉద్యమం తర్వాత ఉద్యమ సందర్భంలో సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అటు ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో నష్టం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా రాజకీయ కోణంలో ఆలోచన చేయకుండా ఒక తల్లిగా అమరవీరులైనటువంటి పిల్లల కడుపు కోత ఎట్లుంటుందో తెలిసిన కన్న తల్లిగా సోనియా గాంధీ పెద్ద మనిషి చేసుకుని تلنگانہ حکومت کی جانب سے 1 مئی سے 6 جون تک ریاست بھر میں سمر اسپورٹس کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے 33 اضلاع بشمول حیدرآباد کے اہم اسٹیڈیمز میں یہ کیمپس منعقد کیے جائیں گے۔ ان کیمپس میں 30 کھیلوں بشمول کرکٹ، فٹ بال، سوئمنگ، بیڈمنٹن، مارشل آرٹس، پیرا اسپورٹس کی بھی تربیت دی جائے گی۔ اس سال مفت یوگا اور زمبا سیشنز بھی ہوں گے۔ حیدرآباد میں LB اسٹیڈیم، گچی باؤلی، سرور نگر انڈور اسٹیڈیم، جم خانہ گراؤنڈ، حسین ساگر پر تربیتی کیمپس لگائے جائیں گے۔
नए चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने मंगल के रोज प्रजा भवन पहुंचकर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने चीफ सेक्रेटरी को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि 30 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी वजीफे पर सबदोश हो रही हैं। उनकी जगह रामाकृष्ण राव IPS ने ली है। पीर के रोज चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर रामाकृष्ण राव का तकर्रुर करने पर रामाकृष्ण राव ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया था। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में भूभारती मिसाली बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस हुकूमत ने 3 अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका आगाज़ किया था। अब 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासत के तमाम अजला में भू भारती को मुतारफ़ करवाते हुए अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत हज़म नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि KCR ने जलसे आम में कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ गुमराह कुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया, जबकि हक़ाइक़ ये है कि कांग्रेस 6 ज़मानतों को रूबेमल लाने के अलावा बारीक चावल की फरहमी और राजीव युवा कासम के ज़रिए नौजवानों को खर्चात फराहम करने के इक़दामात कर रही है। అంటూ ఒక మాట అనొచ్చు మామూలు కానీ సీట్ల మీద కూర్చుని పోయేటోళ్ళు అయితే శబాష్, రేవంత్ రెడ్డి శబాష్, పొన్నం ప్రభాకర్ అయితే అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఒక సీట్లో ఇప్పుడు చూడండి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో అసలు ఆర్టీసీ మర్చిపోయే కాలం వచ్చింది కేసీఆర్ పుణ్యమని. ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంటు ఆర్టీసీ బస్సులనే మర్చిపోయారు. అలాంటిది ఉచిత మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుకు చాలా డిమాండ్ వచ్చింది. BRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हैदराबाद की इमेज को ख़राब कर रही है। जब से कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल किया तब से हैदराबाद में पानी का मसला दरपेश होने के अलावा घंटों बरक़ी सरबराही मुनक़ता की जा रही है। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद शहर को दुनिया का बेहतरीन शहर में तब्दील किया था, लेकिन अब शहर में स्ट्रीट लाइट्स तक बराबर नहीं चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो तलबा फीस रीइंबर्समेंट को लेकर मुश्किलात से दो चार हैं। ఉంటే గురుకుల పాఠశాలలో నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల గురించి బాధపడతా ఉంటే, మరి ఎన్నికలు ఇచ్చిన వాగ్దానాల నుండి ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే, తాగడానికి నీరు లేక ఇక్కడ నగర ప్రజలు కానీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజలు బాధపడతా ఉంటే, సాగుకు నీరు అందించకుండా అందుతున్న రైతులు బాధపడతా ఉంటే, వీరందరినీ కూడా వదిలిపెట్టేసి కడుపు నిండా ఉన్నటువంటి అందాల పోటీల గురించి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్ష నిర్వహించడానికి సమయం ఉంది, కానీ ఈ సమస్యల గురించి సమీక్షించే టైం వారికి లేదు. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో తాగడానికి నీళ్ళు లేవు, స్ట్రీట్ లైట్స్ వెలుగుతలేవు అని చెప్పేసి పదే పదే చెప్తా ఉన్నాం. 40% వెలుగుతలేవు అని చెప్తా ఉన్నాం. BRS रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस ने तेलंगाना की आवाम के साथ धोखाधड़ी की है, चाहे तेलंगाना की तश्कील से पहले हो या तश्कील के बाद। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की रियासत में मकबूलियत में इजाफे से और हन्नमकुंडे के जलसेआम में लाखों अफराद की शिरकत से बौखलाहट का शिकार होकर के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। మేమంతా చెప్పింది చేసినాం, అన్ని అమలు చేసినాం. కొంచెం సిగ్గాన్ని ఉండాలి మాట్లాడడానికి. రుణమాఫీ గురించి మీరు మాట్లాడింది ఏంటి అయ్యాలా? మొట్టమొదటి రోజు స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీలో బట్టి విక్రమార్క పెట్టినాడు మీటింగు 49,600 కోట్లు మీరు చెప్పింది. రాష్ట్ర రైతాంగానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఒక్కసారి జాగ్రత్త వినండి.
మొదటి రోజు చెప్పింది 49,600 కోట్లు, 4 రోజులకే 31,000 కోట్లకు తెచ్చిర్రు. మొదటిది 40. सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी मुहिम के तहत 30 अप्रैल बरोज़ चारशंबे को बत्ती गुल एहतजाज में शिरकत की अपील की है। अपने बयान में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों और दुकानों व कारोबारी इदारों की लाइट्स बंद रखें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वक्फ क़ानून दस्तूरी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में मदाखलत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस एहतजाज के ज़रिए ये पैगाम दिया जाए कि ये एक काला क़ानून है। की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट क़ानून बनाया है वो भारत के संविधान और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है, और ये ख़ास तौर से मुसलमानों के धर्म वक्फ बोर्ड में मदाखलत इस क़ानून के ज़रिए की जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कल 30 अप्रैल के दिन रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये क़ानून एक काला क़ानून है जो भारत के संविधान के ख़िलाफ़ और फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ बनाया गया है। मेरी आप तमाम से ये अपील है। शहर हैदराबाद की आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीने मुनव्वरा पहुँच गया है। 262 आज़मीन पहली परवाज़ से रवाना हुए थे। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआओं के साथ काफ़िले को रवाना किया। सदरनशीन हज कमेटी सैयद शाह ग़ुलाम हुसैन अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा और दूसरों ने तलबिया की गूंज में आज़मीन हज को रवाना किया। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। रियासत तेलंगाना के मज़ीद 6872 आज़मीन की रवानगी भी अमल में आएगी। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك सदरनशीन रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी ने बताया कि 262 आज़मीन पहले काफ़िले के ज़रिए रवाना हुए हैं। मुक़ामियत मुक़द्दसा में आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिन इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में भी मौसूल इंतज़ाम किए गए हैं। आज़मीन को अपने शेड्यूल में तब्दीली की इजाज़त नहीं रहेगी। हज इंस्पेक्टर्स को हंगामी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तरबियत दी गई है। CPRP की भी तरबियत दी गई है।
الحمدللہ آج 262 عازمین حج مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے. یہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا پہلا قافلہ روانہ ہوا اور اس سال تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین کو جیسا کہ وہاں پر گئے سال یہ دیکھنے میں آیا کہ پیدل چلنا زیادہ ہے تو حج کے لیے پہلا قدم پروگرام رکھا. خواتین کو اور تمام حضرات یعنی سب کو ہم نے کہا کہ روز پیدل چلنے کی عادت ڈالیں کیونکہ وہاں پر آپ کو پیدل چلنا ہے. ساتھ ہی ساتھ بہترین علماء اکرام کو رکھ کر مناسک حج سکھائے گئے تاکہ ان کا حج قبول ہو. اور اس کے بعد صحت کے لیے بھی کافی ان کے اندر بتایا گیا کہ صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. فزیکل فٹنس کے تعلق سے ہی بتایا گیا. اور خادم الحجاج کو بھی جو ہے الحمدللہ اچھی ٹریننگ دی گئی. اس میں CPR کی بھی ٹریننگ دی گئی. عازمین کے ساتھ کس قسم سے ان کو بیہیو کرنا ہے وہ بھی کہا گیا ان سے اور اس کی بھی تربیتی کلاسز ہے. اور اس سال خاص بات یہ ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر آخری فلائٹ سے جائیں گے اور وہ بعد میں وہ قیام کریں گے اور ہمارے حج انسپیکٹرز کے رابطے میں رہیں گے. یہاں کے عازمین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا جائے گا. اور خاص بات یہ کہ سعودی گورنمنٹ بھی اس سال نسک ایپ کے ذریعے بہترین انہوں نے میپنگ کی ہے. جیسا کہ فلائٹ شیڈول چینج نہیں کر سکتے. جو بندہ فلائٹ میں پہنچے گا تو انہوں کہاں ٹھہرے گا, کون سا مولم ان کو ریسیو کرے گا, مدینہ شریف میں کہاں ٹھہریں گے, مکہ شریف میں کہاں ٹھہریں گے, کس بس میں آئیں گے, مزدلفہ میں کیسا جائیں گے, یہ ٹوٹل ابھی سے طے کر دیا گیا ہے. اس لیے فلائٹ شیڈول چینج نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تمام عازمین کو خیر فصل لے جائے اور خیر فصل لائے. آج 262 حاجی ہے. ہندوستان سے عازمین حج کے قافلے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں. مقدس سرزمین پہنچنے پر مقامی سعودی حکام اور ہندوستانی سفارتخانے کے حکام نے ہندوستانی عازمین کا استقبال کیا. پھول اور کھجوروں سے عازمین حج کا استقبال کیا گیا. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے بھی اقدامات مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے بستی نبی کریم باخر نگر خواجہ نگر کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مسائل اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹر محمد خادر, مختلف محکموں کے عہدیداروں کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. مجلسی رکن اسمبلی نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے بھی واقف کروایا. اور پروجیکٹ کے SC ڈپٹی AE الیکٹریسٹی AD AEs کے ساتھ بستی نبی کریم اور باخر نگر خواجہ نگر کے علاقے کا دورہ کیا گیا اور یہاں کے مسائل کو دیکھا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ باخر نگر کے اندر حضرت فقیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 50واں عرس شریف کے انتظامات کے سلسلے میں بھی بارگاہ کا بھی دورہ کیا گیا اور وہاں کے بھی جو عرس شریف کے اندر انتظامات ہونا ہے, پینے کے پانی کا انتظام اور ٹیمپرری لائٹنگ اور وائٹ واش وغیرہ جو بھی انتظامات ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور متعلق آفیسرز کو اس کی ہدایت دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو خواجہ نگر کے اندر جو پروجیکٹ کا کام جو چل رہا ہے جو فلائی اوور کا, اس کی وجہ سے یہاں پر ایک درگاہ شریف ہے, اس کے سامنے ایک پلیئر کے لیے کھودا گیا تھا اور وہاں پہ کچھ وجہت کی بنا کے اوپر وہاں پر وہ گڑھا بند کر دیا گیا ہے جو کالم کے لیے کھودا گیا تھا. لیکن وہاں پر ایک سیوریج لائن تھی, اس کو بند کر دینے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے عوام کو, جو اسٹارم واٹر ڈرین اور سیوریج کا پانی بالکل گھروں کے اندر بیک مار رہا ہے. تو ہم نے بھی پروجیکٹ کے SC صاحب اور ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر کو تمام کو اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے
یہ کام کو شروع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو عوام کی تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سیوریج لائن جو خواجہ نگر سے اندر سے لے کر آ کر یہاں پر روڈ کے اوپر ملانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جی ایم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا اسٹیمیشن بنا کر سینکشن لے کر وہ کام کو بھی مکمل کرنے کے لیے کہا گیا. تو لہٰذا اس موقع کے اوپر میں تمام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل میں بھی مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے حلقے میں منظورہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور دیگر کاموں کے جائزے کی نمائندگی کی، اور اسی غرض سے جی ایچ ایم سی زونل کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ہمراہ کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا. بارش کے موسم سے قبل کاموں کی تکمیل کے لیے نمائندگی بھی کی گئی. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. آج جی ایچ ایم سی زونل کمشنر آفس میں ایک یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کی ریویو میٹنگ لی گئی ہے. ریویو میٹنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ جو کام اسٹارٹ ہونے کا ہے اس کام کو تیزی لانا ہے. آنے والا ٹائم بارش کا ہے، پراپر ڈیسلٹنگ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بارش کے اندر کوئی بھی ایسی پرابلم آتی، جھاڑ گرتا یا ایسا کرتا، تو وہ تمام مینٹننس کی ٹیم کو ایکٹیو کرنا ہے، اور جو ڈی آر ایف کی ٹیم ہے اس کے بارے میں بات کرنا تھا. اور اس کے علاوہ میجر جو ایشو چل رہا ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کا جو گورنمنٹ جی ایچ ایم سی نے جو کانٹریکٹ دیا تھا وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، جس کے لیے مینٹننس کے لائٹس آ نہیں رہے ہیں. اسٹریٹ لائٹ کافی ٹھپ ہو گئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 30% سے زیادہ گلوئنگ نہیں ہے، جس کے لیے ہم خاص طور سے یہ میٹنگ رکھ کے بولے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نئے کمشنر صاحب آج ہی چارج لیے، ان سے بھی ملاقات کریں گے. ملاقات کر کے اسٹریٹ لائٹ کو کیسے درست کرنا ہے عوام کی سہولت کے حساب سے وہ کام کرائیں گے. اور ایک ہے جو دوسرا اہم مسئلہ تھا وہ سینیٹیشن کا، مطلب آپ کا جو کچرا رہتا، گاربیج رہتی، پراپر سویپنگ نہیں ہوتی، اس کے تعلق سے بھی ہم خاص طور سے بات چیت کیے ہیں. اور جو ہمارے پینڈنگ ورکس اسٹارٹ ہونے والے تھے وہ کاموں کو اسٹارٹ کر کے تیزی سے کاموں کو تکمیل کرانے کے لیے یہ میٹنگ لی گئی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے منگل کو دارالسلام میں 48 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کوثر محی الدین نے بتایا کہ آصف نگر منڈل کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ جلد ہی دوسرے چیکس کی بھی تقسیم عمل میں لائی جائے گی. حلقے کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے. استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے اظہار تشکر کیا. ٹوکن نمبر 26 شہانہ بیگم، ٹوکن نمبر 26 شہانہ بیگم، ٹوکن نمبر 2 ٹوکن نمبر 4 غوثیہ بیگم، ٹوکن نمبر شاہجہان بیگم، ٹوکن نمبر 6 وسیم بیگم، ٹوکن نمبر 7 منگلات میرے مطلب جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر کاروان کے آصف نگر میں 48 چکوں کو شادی مبارک کے دیا گیا. انشاءاللہ شیخ پیٹ منڈل کے بھی شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے چکوں ہے. انشاءاللہ میں شیخ پیٹ منڈل کے بھی دیے جائیں گے. آج کے پروگرام میں آصف نگر منڈل کے تمام عہدیدار اور کاروان کارپوریٹر جناب سامی احمد صاحب، نمائندہ کارپوریٹر جناب ہارون فرحان صاحب اور جماعت حلقہ نامپلی کی 101 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں بھی شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس تقسیم کیے گئے. رکن اسمبلی ماجد حسین نے دارالسلام میں 1 کروڑ 11 روپے سے زائد کی رقم کے چیکس تقسیم کیے. اس موقع پر
حلقے نامپلی کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے. استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی محمد ماجد حسین سے اظہار تشکر کیا. شانو بیگم ٹوکن نمبر 12. تبسم بیگم ٹوکن نمبر 25. ٹوکن نمبر 63. ٹوکن نمبر 38 شبانہ بیگم تونیسا سید علی گڑا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بامقام دارالسلام مرکزی دفتر کلن مجلس اتحاد المسلمین سے نامپلی حلقے کے قریباً 101 شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس یہاں سے تقسیم کیے گئے عوام کو، جس کی کل لاگت 1,11,12,000 روپے کا کل لاگت ہے جو یہاں پہ عوام میں تقسیم کیے گئے. الحمدللہ ایسا کام یہاں پہ جاری ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور جو بھی اگلے چیکس جو پینڈنگ ہیں اس کی بھی نمائندگی مجلس کر رہی ہے اور جلد سے جلد باقی کے بھی چیکس بھی جس کے بھی پینڈنگ ہیں وہ جلد سے جلد ان کو بھی ہم دے دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جب یہ چیکس ڈسٹریبیوشن ہو رہا تھا یہاں پہ ہم نے پوری اطلاع دی کہ کیا کیا کام نامپلی حلقے میں ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو تعلیمی ادارے میں جو کام مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے بتایا. اور اب فی الحال تو جو ITI کالج جو گورنمنٹ کا ITI کالج نامپلی میں اس کے ایڈمیشنز بھی اوپن ہیں. نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے. ITI میں آپ کی تعلیم بھی مکمل ہوگی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ قابلیت کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ روزگار بھی فراہم ہوگا. MNJ میں پیرامیڈیکل کورسز کی شروعات ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی اگر کوئی نوجوان یا ہمارے بچیاں انٹرسٹڈ ہے تو اس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ملا پلی میں جو لائٹ ہاؤس کھولا گیا ہے وہاں پہ 70 سے زیادہ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز وہاں پہ دیے جا رہے ہیں نوجوان بچے اور بچیوں کو، اور وہ کورسز کے ساتھ ساتھ پلیسمنٹ کی بھی کوشش ہو رہی ہے. تلنگانہ میں لاکھوں طلبہ جو 10ویں جماعت کے نتائج کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے ان کی ریلیز کی تاریخ طے کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی چہارشنبہ 30 اپریل کو دوپہر 1 بجے رویندر بھارتی میں ان نتائج کا باقاعدہ اعلان کریں گے. اس بات کی تصدیق محکمہ سرکاری امتحانات کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کی گئی ہے. تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اتھارٹی ہائیڈرا کی جانب سے شہر کے اندرونی حدود میں بھی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے کے تحت مہدی پٹنم چوراہے کے قریب اولڈ پرنس ہوٹل لین میں فٹ پاتھ پر واقع قبضوں کو برخاست کیا گیا. تاہم دکانداروں نے اس انہدامی کارروائی میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا.
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा पर वफ़ क़ानून 2025 के ख़िलाफ़ चारशंबा 30 अप्रैल को 9 बजे शब बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म करने की आवाम से अपील की है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी व दीगर अरकान ने अपने एक बयान में कहा है कि वफ़ का ये सियाह क़ानून मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसके ज़रिए मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों को हाशिए पर लाने की मुनज़्ज़म साजिश है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम सेकुलर शहरियों और आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो इस तमाम चारशंबा 30 अप्रैल को 9 बजे शब 10 मिनट के लिए अपने मकानात, दुकानात, इदारेजात व दीगर तनसीबात पर लाइट को बंद रखें। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बकरीद तक एक एहतजाजी लाहे अमल जारी किया है। फोरम बोर्ड के ऐलान करदा तमाम एहतजाजी प्रोग्राम्स की तायीद करते हुए इनको कामयाबी से हमकिनार करने की अपील करता है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत की और मुतासरीन के तईं कश्मीरी आवाम के जज्बे इखलास की सताइश की है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने पहलगाम वाक़े के बाद मुल्क में सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा भी किया। हिंदुस्तान में वक्फ कानून 2025 बनाया गया और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का ये एहसास है कि ये एक नाजायज़ कानून है, ज़ालिमाना कानून है और इसके ख़िलाफ़ तमाम मिली तंजीमें एक साथ खड़ी हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लीड कर रहा है और हम अवामी राय आम्मा के ज़रिए से, अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए से हुकूमत को और अरबाब इक़्तिदार को ये बताना चाहते हैं कि ये कानून मुस्लिम कम्युनिटी को मंजूर नहीं है। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रोटेस्ट के शक्ल के लिए बनाई है। उसी में से एक अहम जो एक्टिविटी है वो है बत्ती गुल मूवमेंट या प्रोटेस्ट। आप जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और पूरी दुनिया में एहतजाज के अलग अलग तरीक़े हैं। अपनी नाराज़गी डिसएग्रीमेंट के इजहार के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीक़ा ये है कि कुछ पल के लिए हम अपने घरों की रोशनी को बुझाएं और बुझाकर गवर्नमेंट तक अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, अरबाब इक़्तिदार को बताएं कि हम आपके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। ये एक स्याह कानून है। जिस तरह रात की तारीकी में इंसानी समाज आज जी नहीं सकता, उसी तरह आपके इस कानून के तहत हम जी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाते हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रोटेस्ट कल यानी 30 अप्रैल को रात में 9 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होगा और पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस प्रोटेस्ट को पूरी संजीदगी के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ लेगा और तमाम लोग जो इस कानून के ख़िलाफ़ हैं वो अपने घरों की रोशनी को बंद करेंगे। जो इसके लिए टाइम फ़िक्स किया गया है वो रात में 9 बजे से है। तो 10 मिनट के लिए बत्ती गुल करनी है। 9 बजे से लेकर 9:15 तक का टाइम है। कोई देर सवेर भी हो जाए तो 9:15 तक ये बत्ती गुल का एहतजाज हम दर्ज कराएंगे। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि हम मसाजिद कमेटी से और मस्जिदों के अइम्मा और वहाँ के ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को लीड करें अपने इलाके में। इसके लिए जुमा में इसके लिए कल असर की नमाज़ में और मगरिब की नमाज़ में, इसी तरह इशा की नमाज़ के बाद बाज़ाब्ता रिपीटेडली ऐलान किया जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ एक बहुत अहम मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए हमारा कोई भी एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी तरह का इंसानी नुकसान हो या इंसानों को तकलीफ।
तेलंगाना ऑटो फेडरेशन के तहत काम करने वाली तंजीम गरीब ऑटो ड्राइवर यूनियन की जानिब से पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने और महलूकीन के विरसा से इजहार हमदर्दी करने की गरज से अल्फ़ा होटल सिकंदराबाद तक क्लॉक टावर तक एक कैंडल रैली निकाली गई। कैंडल रैली में बड़ी तादाद में ऑटो ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया और इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर प्रेसिडेंट यूनियन मोहम्मद इब्राहिम अहमद, सैयद सुभान आर, रमेश कुमार, संपत रेड्डी, मोहम्मद अफसर, सैयद नबी के अलावा श्रीनिवासलू और एन कृष्णा एडवोकेट भी मौजूद थे। భారత సైన్యంతో ఉన్నాం, మీరు ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడితే ఊరుకునేది లేదు, పాకిస్తాన్ ద్రోహులారా భారతదేశం వదిలి మీరు వెళ్ళిపోవాలి, లేని పక్షంలో మా ఆటో యూనియన్ నాయకులు కూడా సైనికులై పోరాడతారని వారిని हैदराबाद सिटी पुलिस के नारकोटिक्स विंग्स ने नल्लाकुंटा पुलिस के हमरा बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 1,40,00,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स एंड सेट पी विश्व प्रसाद ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज हैदराबाद पुलिस ने आपके सामने एक अच्छा नारकोटिक गैंग को बस्ट कर से वो आप लोगों को आपके सामने पेश कर रहा है। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ऑफिसर्स एंड नल्लाकुंटा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑफिसर्स दे गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट गैंग ऑफ ड्रग सप्लायर्स, ड्रग कंज्यूमर्स एंड ड्रग पेडलर्स। तो बेस्ड ऑन दिस 2 सप्लायर्स, हर्षवर्धन श्रीवास्तव वो जबलपुर से है, दूसरा श्रीनिवासन राहुल चेन्नई से है और बाकी 2 अभिषेक एंड डावल ये दोनों हैदराबाद से है। अभिषेक ऑल दिस ये 4 लोग अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है। 2 लोग चेन्नई में बीटेक करा है, एक आदमी ने IIIT रायपुर में अभिषेक IIIT रायपुर में बीटेक करा है। मेन सप्लायर हर्षवर्धन श्रीवास्तव भी वो भी बीटेक पढ़ा है पुणे में। तो इजी लाइफस्टाइल के लिए, लाइविश लाइफस्टाइल के लिए, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के लिए एक आदमी ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऐसा वंस देवर कंज्यूमर्स, पहला कंज्यूमर्स था, अभी उसमें पैसा है बोले तो उसको कंज्यूमर बन गए, कंज्यूमर से पेडलर बन गए, पेडलर से सप्लायर भी बन गए। इसमें बड़ी बात क्या है बोले तो ये लोग डार्क वेब में सर्च कर लेके रेडिट वगैरह ब्रेड मार्केट को ऐसा कम्युनिटी में कनेक्शन डेवलप करके एक हैंडलर को पहचान लेके हैंडलर से ड्रग्स ऑर्डर कर ले रहे और ये डिलीवरी भी हवाला ऑपरेटर से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट हो रहा है। डिलीवरी प्राइवेट कुरियर से लाइक श्री आंजनेयु, श्री तिरुपति एंड DTGC कुरियर से भी वो लोग बेच रहे हैं। ऐसा बिफोर ये कंसाइनमेंट में डिलीवरी होने से पहले ही वो क्लाइंट जो रहता है, वो एंड यूजर जो रहता है, वो कार्गो ऑफिस जाके वो ट्रैक आईडी बता के, एड्रेस बता के वो कंसाइनमेंट को ले रहे थे। बट इसमें क्या है, वो एड्रेस भी रॉन्ग हो रहा, मोबाइल नंबर भी रॉन्ग हो रहा। ये 4 लोगों को पकड़ के 1380 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक गंजा, हमारा लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलता है, वो इस नेम इज ओरिजिनल गैंगस्टर, इट इज नथिंग बट कनाबिस, मारुआना जो रहता है ना, मारुआना का 1380 ग्राम्स प्यूरिफाइड मारुआना, दिस इज OG, अदरवाइज कॉल्ड एज OG 1380 ग्राम्स, 44 LSD स्ट्रिप्स और 250 ग्राम्स ऑफ मैजिक मशरूम्स। ये भी एक मशरूम है, फंगी है, बट इसमें क्या साइकिल सब्सटेंस रहता है, उसके लिए ये बना है, प्रोहिबिटेड है। वी आर नॉट सपोज टू कंज्यूम दिस थिंग्स बिकॉज इट हैज गॉट साइकिडेलिक केमिकल्स इसमें रहते हैं। ये खाए तो भी वो हमको हेलुसिनेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी स्टेटस में जाते हैं लोग। ऐसा ये तीनों भी सीज करा है और अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें श्रीनिवासन राहुल 2024 में माडीबाकम पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में अरेस्ट हुआ है। वो अरेस्ट टाइम पे उसके पास 6.9 kg ऑफ OG मिला था। बाकी ये 4 लोग अभी पहला कंज्यूमर्स हैं, अभी पेडलर्स बन गए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, लाइफ स्टाइल जीने के लिए ये लोग ये नया अवतार ले लिया है। बाकी पिछले 2 साल से ये ड्रग्स ट्रेड कर रहा है। इसमें क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, हवाला ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट है,
एंड एप्लीकेशंस लाइक स्नैपचैट एंड सिग्नल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बिकॉज ये पूरा कम्युनिकेशन इनके रहता है, इनकॉग्निटो रहता है, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, पुलिस वाला भी नहीं। हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब शाह सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफ़ा हज़रत कमालुल्लाह शाह अल मारूफ मछली वाले शाह की 84वीं सालाना उर्स तक़ारीब चारशंबा 30 अप्रैल मुताबिक यकुम ज़िक़ात बाद नमाज इशा आस्ताना अहमद नुमा कमालिया गुलशन कोतनपल्ली मंडल राजापुर जड़शल्ला ज़िले महबूबनगर में मुक़र्रर है। मुतवल्ली सदरनशीन मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ जुनैदी गौसवी मरासिम अंजाम देंगे। शाह मुबशिर अहमद शाहिद पीरा खल्फ हज़रत पीर सहवी शाह निगरान तक़ारीब होंगे। चिरागां जुमेरात यकुम मई को बाद नमाज मग़रिब मुक़र्रर है। उसके मौके पर आस्ताना अहमद नुमा कमालिया गुलशन में जलसे फौज़ान अहलिया मुनक़्क़िद होगा। हैदराबाद महबूबनगर और दीगर अजला से उलमा इकराम मशाइख़ निज़ाम और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगे। रियासत तेलंगाना आंध्र प्रदेश व दीगर इलाक़ों से बेशुमार अक़ीदतमंद उर्स तक़ारीब में शिरकत करते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वक्फ एक्ट तरमीमात के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किए गए बत्ती गुल एहतजाज को कामयाब करने सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने की अपील। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के इंतजामात का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। 30 अप्रैल को दोपहर 2 बजे दिन वज़ीर आला तेलंगाना SSC के नताइज जारी करेंगे। हाइड्रा की जानिब से शहर के अंदरूनी इलाकों में भी कार्रवाइयों का आगाज़। मेहदीपट्टनम रोड पर फुटपाथ पर कब्ज़ों को किया गया बर्खास्त। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियती अशिया की गई जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।